Good morning, my dear students. Today I am here with a new topic, and the topic is one another kind of animal tissue. So, students, today I will discuss one another kind of animal tissue, and this animal tissue is nervous tissue. तो आज हम बात करने वाले हैं nervous tissue की. तो students, I want to tell you that the cells of the nervous tissue are highly specialized. ठीक है, आई एम सेइंग दैट द सेल्स विच आर forming nervous tissue are very highly specialized. Now, how can we say that these are highly specialized? These are specialized because they are detecting all the stimuli around us. They are detecting all the stimuli around us, and then they are generating some nerve impulses, and these nerve impulses are then transmitted either to the spinal cord or towards the brain, and the brain is going to be analyzed, and after analysis brain is or the spinal cord is sending its response, and according to it various muscles or glands or organs are responding. So I want to give you one example how these are specialized. Suppose you are touching a hot object. ठीक है, what will happen? Definitely you will pull out your hand back. ठीक है, so how it happens? जैसे ही आप टच करेंगे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो आपकी स्किन में मौजूद जो नर्वस टिश्यू के जो रिसेप्टर सेल हैं, दे आर गोइंग टू डिटेक्ट द स्टिमुलाई, एंड इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे. वो नर्व इम्पल्स आपकी न्यूरॉन से होती हुई आपकी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी. नाउ स्पाइनल कॉर्ड उसे एनालाइज करेगा. एनालाइज करने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से भेजिएगा, एंड आप हाथ पीछे से हटा लोगे. तो we can say that these are very specialized. Now you can better understand that how I am saying that these are highly specialized, because the cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting stimulus very rapidly from one place to another within the body. तो यानी इनका काम क्या है? They are going to detect the stimuli, and then they are sending the stimuli to the various parts of the body in the form of the nerve impulses. Now your nervous tissue is composed of brain, spinal cord and various neurons. ठीक है, and the cells of these tissue are called as nerve cells or neuron. देखिए टिश्यू, what is tissue? Tissue is a group of cells. अब मैं बात करता हूँ नर्वस टिश्यू की. नर्वस टिश्यू भी बहुत सारी सेल्स का बना होगा. सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस टिश्यू? तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी फंक्शन यूनिट है नर्वस टिश्यू की, दीज आर कॉल्ड नर्व सेल्स, या इनका दूसरा नाम न्यूरॉन भी होता है. ठीक है, ईच न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट. अब एक नर्व सेल या न्यूरॉन की मैं बात करूँ तो ईच न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड साइटोन. ठीक है, एंड इसका दूसरा नाम, इसको हम सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं. द अनदर पार्ट इज़ कॉल्ड डेंड्राइट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड एक्सॉन. ठीक है, नाउ हियर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन. तो यू आर ऑब्जर्विंग हेयर व्हाट इज़ साइट सेल बॉडी और साइटोन. ठीक है, द लार्ज portion, broader portion is called cyton, and you are observing fine hair like structures are arising from here. These are called dendrites. Dendrite का मतलब है प्लूरल फॉर्म में. अगर एक ही हेयर की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम बोलेंगे डेंड्रॉन. ठीक है, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दैट नाउ साइटोन इज लिविंग इन टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, and axon has termination, and here the neuron is going to terminate, and this is called nerve ending. ओके, एट नर्व एंडिंग वाले प्लेस अगर अब मैं वन बाय वन इनिशियली आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन. साइटोन, इट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल दैट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस. ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स आर अराइजिंग. तो यानी कि सेल बॉडी जो है, सेल की जो सेल बॉडी है जिसके पास की न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इट इज़ कॉल्ड एज साइटोन. इससे आप देख रहे हैं फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. Now you are observing these are short branched fiber of neurons which receive nerve impulses. तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फैले हुए होते हैं साइड सेल बॉडी या साइटोन से, और इनका काम नर्व इम्पल्सेस को कैच करने का होता है, रिसीव करने का होता है. वहीं एक्सॉन है, देखिए लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है. अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. यानी कि डेंड्राइट्स ने नर्व इम्पल्सेस को कैच किया, उन्हें कहाँ भेजा? साइटोन के पास भेजा. साइटोन उसे कहाँ पे भेज देगा? एक्सॉन के पास. और एक्सॉन में क्या है? नर्व एंडिंग है. अब नर्व एंडिंग में आप देख रहे हैं फिर से क्या होता है, नर्व एंडिंग के पास आकर के जो कोई दूसरा न्यूरॉन है वो आकर के अटैच हो जाता है. ठीक है, अब देखिए
इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है, कैसे करेंगे? एक वायर होगा, दूसरे वायर को, पहले वायर को दूसरे वायर से जोड़ेंगे, दूसरे को तीसरे से जोड़ेंगे, तीसरे को चौथे से जोड़ेंगे, सोन वायर जोड़ते जोड़ते हम एक लंबा सा एक सिस्टम तैयार करेंगे और उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें भेजना है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को पास करने के लिए कई सारे न्यूरॉन्स आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सिंस वी नो दैट न्यूरॉन हैज 3 पार्ट, डेंड्रॉन और डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, केमिकल फॉर्म में इन इंपल्सेस को कैच करते हैं, ठीक है। ये केमिकल इंपल्सेस को भेज देते हैं साइटोन के पास। साइटोन क्या करता है, इन केमिकल इंपल्सेस को इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। इंपल्सेस एक तरह से कह सकते हैं करंट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं ये साइटोन से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्सॉन में पहुँच जाते हैं। नाउ एक्सॉन में जब पहुँचते हैं तो नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द एक्सॉन, एट द टर्मिनेटिंग एंड ऑफ द एक्सॉन यू आर ऑब्जर्विंग देर आर नर्व एंडिंग्स, और नर्व एंडिंग पे आप देख रहे हैं कि जो ये नर्व एंडिंग्स हैं यहाँ पर बल्ब से बन रहे हैं, एंड बिल्कुल एंड पार्ट पे। तो यहाँ पे दोबारा से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं केमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट होती हैं ना। अब ये जो केमिकल इंपल्सेस हैं, अब इसके साथ अटैच होता है दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। तो डेंड्राइट फिर इन केमिकल इंपल्सेस को कनेक्ट कर लेता है। तो कभी कभार पूछते हैं कि व्हाट इज साइनेप्स, SYNAPSE। तो यू मस्ट हैव टू आंसर दैट साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव न्यूरॉन, यानी 2 कंजिक्यूटिव न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। इज इट क्लियर? नाउ अब कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, तो यू हैव टू आंसर नर्वस टिश्यू। पहला फंक्शन यू कैन से दैट इट हेल्प्स टू डिटेक्ट ऑल द स्टिमुलाई अराउंड अस, जितने भी स्टिमुलस हमारे चारों ओर होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने का काम करता है। एक्सेप्ट इट, नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट कोऑर्डिनेट्स अमंग द वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है। जैसे हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं, किडनी भी काम कर रहे हैं, है ना, और भी वेरियस बॉडी ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी कौन करता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। एंड डेंड्रॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द साइटोन, वेर एज एक्सॉन कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन। तो अब जो डेंड्रॉन है वो नर्व इम्पल्सेस को साइटोन की ओर लेके जाते हैं, और जो एक्सॉन है वो नर्व इम्पल्सेस को साइटोन से दूर लेकर के जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट दीज आर हेल्पिंग इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सो आई थिंक दिस इज इनफ। आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग विद यू, कि कभी कभार पूछते हैं कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो यू हैव टू रिमेंबर देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन वो हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से जो नर्व इम्पल्सेस हैं उन्हें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स, MOTOR। ये अब ब्रेन जो भी आदेश देगा, जो भी ऑर्डर करेगा, जो भी एनालिसिस करने के बाद सिग्नल भेजेगा, उन सिग्नल्स को इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, टच होने के बाद सीधे जो इम्पल्सेस हैं उसे स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड ने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद सिग्नल देगा कि हाथ पीछे खींच लो। तो हाथ को पीछे खींचने के लिए जो इफेक्टर मसल्स हैं, उन मसल्स तक सिग्नल कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन के वो इम्पल्सेस लेके आएंगे। एक और होते हैं रिले न्यूरॉन बोलते हैं इनको, या इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में ज्वाइन करने का काम, कनेक्ट करने का काम करते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है। एंड आई थिंक यू understood well about the nervous tissue. If still you are finding any kind of query, so you can directly contact me. Thank you. Bye bye. Have a nice day.